प्राइस जो है गुड़गांव में बेसलेस है। Do not get influenced by mindless, baseless videos. कोई भी इन्फ्लुएंसर आकर अगर ये बोल दे कि गुड़गांव एक बबल है या गुड़गांव एक हाउस ऑफ कार्ड्स है, हाउस ऑफ कार्ड करके कुछ भी चीज नहीं होती है। इट्स जस्ट अ नेगेटिव स्टेटमेंट जो कि वायरल होने के लिए कहा गया है। Don't believe everything you are seeing on Instagram. Stop scrolling. Have you met one person in Gurgaon who has regretted buying property here? हमें सैंपल फ्लैट पे ट्रस्ट मत करना, बड़ा दिखाया जाता है, छोटा बनता है, बिल्डर लूट रहा है, बेसलेस प्राइसेस हैं। सॉरी, वी आर क्रिएटिंग एन आइलैंड। वी आर नॉट क्रिएटिंग एक एकड़ 2 एकड़ के प्रोडक्ट जहाँ पे चीजें वर्टिकल तो हैं बट हॉरिजॉन्टली कुछ भी नहीं है आपके पास। लेट्स से 2030 what will Gurgaon look like? Will it be like Dubai? तो मेरा आंसर यही है कि 2030 में ना फाइनली ये मिलेनियम सिटी कहलाएगी। Trust influencer, don't trust your broker. मुझे घर खरीदना है बट आई डोंट नो द प्रोसेस। उस प्रोसेस को सिखाने वाला, उस प्रोसेस पे साथ में चलने वाला जो है ना, वो उसका ब्रोकर है। Vishal Bhargav recently claimed Gurgaon is a bubble waiting to burst. Today, we have 4 industry voices to respond with facts, trends, and truth. Welcome to Chai with Chilani, and today we are serving it hot. A video by Vishal Bhargav recently went viral, calling Gurgaon real estate a scam, a bubble, even a trap. People are asking, is this a market of dreams or a disaster in disguise? I am a channel partner myself. Well, I've sold Gurgaon, believed in it, and lived it. But today, we are keeping belief aside and asking hard questions. I have invited 4 strong voices from the industry to break the noise and bring the truth. No filters, no fakery, only facts. Let's begin. Is Gurgaon really overhyped, or is India's next Manhattan? How do you respond to the claims in Vishal Bhargav's viral video? What data or insights disapprove or support this bubble theory? Bubble warning. He warns that Gurgaon's skyrocketing prices aren't supported by fundamentals and could bust soon. Well, overpriced luxury homes points to ultra-luxury high pricing in new projects without corresponding demand. Delivery and quality gaps highlights delays, sample flat fetish, and developers prioritizing glam marketing over genuine build quality. Believes much of the buying is speculative, driven by fear of missing out and influencer promotions, not the true end-use need. Urges stronger regulation and accountability to prevent future buyer losses. So, is Gurgaon the next Dubai or a bubble ready to burst? Vishal Bhargav is wrong, and here is why. Gurgaon prices will crash, not so fast. Only 2% of people understand real estate timing. Are you one of them? We're not selling dreams, we are building cities. So, welcome everyone. Thank you so much for coming on this platform. एक विशाल भार्गव जी हैं, उन्होंने ये बोला कि रियल एस्टेट जो है एक बबल है। इनफैक्ट उन्होंने बोला कि गुड़गांव का रियल एस्टेट जो है हाउस ऑफ कार्ड्स है। सर, बीइंग अ डेवलपर एंड हेडिंग बीपीटीबी, आपको हाउस ऑफ कार्ड्स वर्ड कैसा लगा? I think it's completely baseless. I personally feel that I think if you look at Gurgaon in its entirety, सबसे बड़ा जॉब क्रिएशन का सेंटर है नॉर्थ इंडिया का। इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसकी कंट्रीब्यूशन टू द एंटायर इकोनॉमी ऑफ नॉर्थ इंडिया, फॉरगेट हरियाणा, इज स्टुपेंडस। सो इफ़ यू एक्चुअली लुक एट इट, जिस लेवल की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ आज की डेट में गुड़गांव में हम सब ने देखी है, you know, of course, being in the industry for more than 2 decades, I have seen how infrastructure has ramped up now in the last 2 to 3 years compared to what it used to be earlier. So this is actually the time where Gurgaon is actually ready for a huge takeoff. So saying that, I think completely baseless. I personally feel बबल का मतलब क्या होता है? बबल का मतलब होता है कि बहुत ही बड़ा हाइप क्रिएट हो गया बगैर किसी बेस के,
और वो कहीं ना कहीं फटने वाला है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या गुड़गांव का इम्प्रूव हुआ है, फटा कैसे? ना तो मैं वही कह रहा हूँ ना, आई डोंट थिंक देर इज एनी बबल और देर इज एनी ओवर हाइप दैट इज हैपेंड इन गुड़गांव। गुड़गांव में रियल एस्टेट की जितनी डेवलपमेंट हुई है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे हुई है। बल्कि इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है सर, अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है विजिबल है। राइट। पहले तो हम द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करते थे कि ये बन जाएगा, कितने सालों तक डिस्कस करते रहे। सालों तक हमारी ड्रीम होती थी। अब तो रियली 2025 में हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे ट्रैवल कर सकते हैं। वो रिसेंटली टनल भी खुल गया, पानीपत खुलने वाला है, कनेक्टिविटी इंप्रूव करने वाली है। तो जब हाउस ऑफ कार्ड्स परीक्षित, क्या मतलब हुआ कि मतलब सब कुछ कार्ड्स की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर? I would say don't take anything on the face value. Understand the motive behind what is being said. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट इज द मोटिव? There are certain lobbies, there are certain organizations, there are certain industries, certain sectors in particular cities of India who may not be happy, jealous may be too rude a word. They may not be happy seeing the progress of Gurgaon. Also, certain influencers who are becoming viral, also to check their employment credentials, where exactly they're employed, which sectors are they promoting? Are they promoting financial products? Are they promoting share markets? Are they promoting mutual funds? Because financial advisor and a real estate consultant, the end customer is the same. Don't forget that. And certain markets like Pune, Bangalore, Mumbai, Chennai, if I may, Gurgaon is doing phenomenally well, perhaps better than these markets. So is the real discussion about Gurgaon versus Pune? The real discussion is about vested interests and people who are actually running such campaigns to possibly decimate the entire groundwork that is being done. So we'll come back to that point. That's very interesting. Is it vested interest? Is it Pune? Or is it something else? But what does the fact say, Priyam? कि हमारे गुड़गांव में हाउस ऑफ कार्ड्स क्यों नहीं है? डेटा क्या कहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही इमेच्योर स्टेटमेंट है। कल कोट कर मैं बोलूं कि मुंबई पर में ये बहुत बबल है। वायरल हुआ। नहीं, वायरल तो कुछ भी हो रहा है, तो वायरल हमेशा सही नहीं होता। हाँ, वायरल की डेफिनेशन कुछ भी नहीं, कुछ तो वायरल की डेफिनेशन देखो क्या है कि हर आदमी को कुछ नया सुनने में मजा आता है, और नेगेटिविटी एक ऐसा वर्ड है या एक ऐसा सेंटिमेंट है जो सबको कहीं ना कहीं प्लीज करता है। जो आप खुद कह नहीं सकते वो दूसरे के मुंह से सुनने में मजा आता है। तो लोग देख रहे हैं एज अ व्यूअर, बहुत से लोग हैं जिनको लगता है कि चीजें खराब होंगी तो उनका फायदा होगा। तो अगेन जैसा परीक्षित ने कहा कि वेस्टेड इंटरेस्ट वो एक बहुत बड़ा रीजन है। सेकेंडली पर्सनली मैं गुड़गांव में जब घूमता हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं बिग 4 में काम कर रहे हैं, मैं साइबर सिटी में खुद 8 सालों से काम कर रहा हूँ, ऊपर नीचे ऑल द टॉप नॉच कंपनीज आर वर्किंग, एंड बिलीव मी एवरी सेकेंड डे मेरे पास सामने से कॉल आती है, प्रियम कुछ दिला दो यार, मुझे घर लेना है। मतलब मेरे चारों तरफ कंप्लीट क्लियर एक फुल डिमांड है। You being from Analog, which is a data-driven company, believes in a lot of facts. What does the data say? 2025 में या 24 में सेल्स कितनी बढ़ी, घटी या बबल था? Year on year from last 5 year, like sales are increasing every year, 15 to 20% are increasing, but somehow in last quarter the other numbers are decreased। but उसका एक रीजन है कि आप समझो, पहला क्वार्टर कभी भी हर साल आप उठा कर देखो, कहीं ना कहीं वेकेशंस आ जाती हैं, कहीं ना कहीं लोग अपनी प्लानिंग्स में चले जाते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग में चले जाते हैं, और हमें समझना पड़ेगा कि ओवर अ पीरियड गुड़गांव का टिकट साइज बढ़ा है। जब टिकट साइज बढ़ा है तो जिस तरह के लोग अब आकर चीज़ों का फैसला ले रहे हैं या डिसीजंस ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आज की डेट में एक बिजनेसमैन है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको अपनी प्लानिंग करनी होती है, अपनी चीज़ों को प्लान करना होता है। तो मुझे लगता है कि केवल एक क्वार्टर पे ना आप प्लीज़ ये डिसीजन मत दो कि चीज़ें गिरने वाली हैं या किसी तरह का कोई बबल है। आई डोंट थिंक सो कोई बबल है। नहीं, पर उन्होंने ये भी तो बोला कि मैं भी वही चेक कर रहा था कि प्राइस जो है गुड़गांव में बेसलेस है। मतलब 4 से 10 CR का जो प्राइस एग्जिस्ट करता है, जैसे प्रेम ने बोला कि प्राइसेस बढ़ गए हैं, बढ़ने का रीजन है उस पर बाद में आएंगे, पर ये प्राइस बेसलेस है उन्होंने बोला। करण, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? बेसलेस का मतलब? So, if I'm not wrong, Vishal is from Maharashtra. And a lot of podcasts I've done, and I've always asked. I have been to Bombay a lot of times. I also want to tell you that I have been an NRI. I've also stayed in Middle East. And now I'm in Gurgaon. If you ask me, as a person, I will always choose Gurgaon over Bombay, Mumbai.
Two reasons. A, I cannot in the morning go on a train धक्के खाके to my office. गुड़गांव की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है, मेरा जो घर है उसके 2 किलोमीटर पे मेरे बेटे का स्कूल है, मेरा ऑफिस एग्जैक्टली 1.5 किलोमीटर्स पे है, मेरे पास सारी वो अम्यूनिटीज हैं जिसके लिए मुझे अपनी गाड़ी लेके या ट्रेन लेके कहीं जाना होगा. सो देर इज अ रीजन वाई a lot of people from North India especially are moving to Gurgaon. If you're saying only Delhi walas are coming, they are to coming. But because I'm in the market and I'm doing those 100 calls a day, I have people from Rajasthan, Madhya Pradesh wanting to move to Gurgaon. Not to Mumbai, not to Pune. Here, So that's what I'm asking. Not to Mumbai, not to Pune. not to Mumbai, not to Pune. They want to have this lifestyle. They want to have, the luxury. And real luxury for me is time, not money. Correct. रियल जो मुझे लगता है आज सबसे महंगी करेंसी इज वक्त, टाइम, एंड दिस सिटी गिव्स मी दैट. यस, आई हैव टू हसल फॉर इट. आप बोलो कि आसान है क्या? गुड़गांव एक महंगा शहर है और इसकी कोई डिनाइंग नहीं है, लेकिन जो कंफर्ट मुझे मिल रहा है दैट इज अमेजिंग एंड आई वुडंट चूज दैट फॉर एनी अदर थिंग. एंड आई एम यंग, आई वांट टू हसल यार. I want to have the ecosystem. I want to have the infrastructure. अगर मैं अपने आप को रिमाइंड कर दूं, if I was 22 and I'm not going abroad, if I am an IT person और मेरे को एक स्टार्टअप करना है तो मैं गुड़गांव चूज करूंगी बिकॉज आई हैव द इकोसिस्टम. कल को मुझे एक्टर बनना था तो मैं बॉम्बे जाती क्योंकि बॉम्बे इज गिविंग मी द इकोसिस्टम. अब जितने लोग आते रहेंगे, अगर मेरी डिमांड सप्लाई का गेम है रियल इस्टेट, अगर आप उसको एंड यूजर बोल दो, आप उसको इन्वेस्टर बोल दो, आप उसको ट्रेडर बोल दो, there's only one word for me. There is a buyer in the market. If there is a buyer, there is demand. There are builders who want to provide you with these things. And having said that, I was very keen. Why is he saying it? तो मैंने उनके recent podcast देखे और मैंने ये जाना कि उनकी कुछ चीजें सही भी हैं. He is not entirely wrong about things. But I think he's not done his homework very, very well. He's only given how this is House of Cards, everything is going to come down, all the people are upset. But please talk to people who stay in this city who say, you know what a cosmopolitan yaar. I wouldn't trade that for anything. Correct. So तो जो डेवलपर्स होते हैं, ये जो प्राइस बोल रहे हैं बेसलेस है. तो जैसे आपका भी एक नया लॉन्च आया है, Right. ठीक है, तो उसका प्राइस आपने पहले वाले प्राइस से 1000 रुपए स्क्वायर फीट ही बढ़ाया, which is 18,000. लास्ट वॉज 16,517. तो आप कैसे प्राइस है? ये बेसलेस प्राइसिंग होती है और या एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है मार्केट में, या एंड यूजर्स मार्केट में बिल्कुल नहीं है, सारे ट्रेडर्स हैं? Not at all. I think the number of end users has really gone up. Of course, there is a investor to end user ratio today also, but the quantum of end users has gone up. तो end users का जो number है वो काफ़ी बढ़ गया है और लोग आज ना अपने आप को upgrade करना चाहते हैं. So someone who's today staying in a 2-bedroom, he wants to get into a 3-bedroom with far greater luxuries. करेक्ट. तो आप अगर 3-3 क्लब हाउसेस दे रहे हैं, 4-4 स्विमिंग पूल्स दे रहे हैं, 7 लिफ्ट्स पर टावर दे रहे हैं, I fully agree with what Karuna said. Today, I think time is the biggest luxury. So people don't want to wait for lifts. People don't want to wait in a crowded swimming pool. They want those kind of amenities ample enough for them. And I think that is something which Gurgaon provides on a platter to people. And that kind of lifestyle has been provided. Infrastructure was a bottleneck earlier. But जिस तरीके से आज government supported infrastructure create हुआ है, be it the tunnel, be it the Dwarka Expressway, be it the Delhi-Mumbai Expressway, be it the additional further developments that is happening, the parallel Delhi-Jaipur Expressway that is originating now from within the Dwarka Expressway itself. So इतनी ज़्यादा developments आज की डेट में हो रही हैं जिससे ये जो एक गैप था ना इन टर्म्स ऑफ, और इतना इसको हाईलाइट किया गया था नेगेटिव वे में कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ आपके जो कॉन्डोमिनियम कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर सब कुछ है, वहाँ पे तो आप फील करते हैं दैट यू आर बेटर देन एनी इंटरनेशनल सिटी ऑल्सो, बट बाहर निकल जाइए तो इट्स अ प्रॉब्लम. बट टुडे by and large that problem has been rectified. Rather you feel pride driving on the kind of world class roads that Gurgaon has today mostly. So I think बहुत ज़्यादा development हुई है. I commute from South Delhi to Gurgaon every day and the amount of mess and time it used to take earlier compared to today is a huge difference. Comparatively less. Much lesser.
especially if you're going on the northern peripheral side, you know. तो परीक्षित, अगर एक बिल्डर नया प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, लेट्स से बीपीडीपी इज लॉन्चिंग, तो उसमें उन्होंने एक वर्ड यूज किया ट्रेडर्स। तो आपके हिसाब से कितने ट्रेडर्स हैं? फिर उन्होंने वर्ड किया एक इन्वेस्टर्स और फिर एंड यूजर्स। तो ट्रेडर्स को उन्होंने बोला सबसे ज्यादा है। तो आप प्रैक्टिकली ग्राउंड पे आपकी आपकी एनालिसिस क्या कहती है? I would say that it's a very predetermined, pre-planned, and precipitated attack on the entire Gurgaon market. It is something which comes from a very restricted view of reality. It is precipitated by external factors who are not happy to see Gurgaon as a market growing and flourishing. As I told you, understand the reason behind his saying what he's saying. If something or someone, you notice it in everyday life, if someone is doing exceedingly well other than other markets or other than other people, the first people you encounter are people who criticize you. Similar for influencer campaigns, the first people you see are negative trolls. People saying negative things because they have nothing better to do. They are jealous. They are jealous because their markets are not doing well. They are not able to replicate the kind of dynamism of the sales consultants, of the sales channel partners, the entire ancillary industries, which is the second largest employer after agriculture in India. You cannot decimate the efforts of hundreds of thousands of people who are putting in their day and night to get those sales happening for developers. You cannot decimate towards zero the entire planning of developers who are investing crores of rupees to acquire these land banks, to hire the best of master planners and architects, and to train their sales team to sell these products, and to train their channel partners to sell these products in a structured manner. It does not happen on day one. It is a planning which goes. So it's a very predetermined, preemptive, negatively planned attack on the entire Gurgaon markets of real estate developers, consultants, customers, to create a negative sentiment, because negativity travels very fast. सच्चाई और ईमानदारी की जीत होती है, पर थोड़ा रुकना पड़ता है उसके लिए. And the figures are very visible. You go to any developer, they will tell you that traders, investors have literally vanished from the market if you compare the scenario what it used to be 20 years ago. But I feel कि it's a decade experience. 2021 तक हमारी गुड़गांव मार्केट तो स्टैग्नेंट सी थी. 2021 से लेकर 2025 तक 2.5 से 3 गुना पैसा बढ़ा. तो उसमें 4 साल में अभी हमने देखा है कि ट्रेडर्स ऑब्लिक इन्वेस्टर्स जो है वो मार्केट से, मेरे हिसाब से, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 20 से 25% ही है. उसके अलावा वो एंड यूजर्स ही आ रहा है जो सैंपल फ्लैट भी देखता है, लोकेशन भी देखता है, गूगल पे सर्च भी करता है और कंसल्टेंट से बात भी करता है, बैंकर से भी बात करता है, तब जाकर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेता है विथ अ पेमेंट प्लान विच इज देयर एंड इज वेरी क्लियर इन हिज माइंड कि बॉस ये जो मैं ले रहा हूँ घर, ये मैं पोजेशन पे शायद बेचूं पर मेरा इरादा इसको रखने का है. देयर इज नो कैलकुलेशन की जिसमें आप ट्रेडर और इन्वेस्टर को पता कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर सेल में कितने ट्रेडर और कितने इन्वेस्टर हैं. पर वो तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ ट्रेडर्स. नहीं, ये एकदम गलत है. मैं बताता हूँ. अभी पीछे बिरला वाला आपको बताया था 310 घर बिके हैं. एवरी अपार्टमेंट इज क्लोज टू अराउंड 11 CR एंड ट्रस्ट मी, मेरे 10 अलॉटमेंट से बहुत ज्यादा अलॉटमेंट नहीं थे, बट बिलीव मी, लोग आ रहे थे, चीजों को समझ रहे थे. 3-3, 4-4 बार मीटिंग्स हुई हैं. तो ट्रेडर इतनी मीटिंग करता है? नहीं, ट्रेडर कभी नहीं आएगा. ट्रेडर तो आएगा ही नहीं देखने. देखो, ट्रेडर वो है जो कहीं बैठा हुआ है, ठीक है लगा देना पैसे. वो जमाना खत्म हो गया है, हमें समझना होगा. वो जमाना कब खत्म हुआ प्रेम? टाइम हो गया उस चीज को. देखो, लास्ट जो इस तरह की रेस थी वो थी 11 से लेके 13 के बीच में, जब विदाउट प्लानिंग इन्वेस्टमेंट हो रही थी. पर 21, 22, 23 में ये था. फैक्ट है ये. आई नो हिम सर फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 16-17 ईयर्स, और सर को पता होगा, सर ज्यादा अच्छा इसको बता पाएंगे कि विदाउट प्लानिंग, विदाउट रेरा जब चीजें खरीदी बेची जा रही थी ना, वो एक ट्रेडिंग थी. यहाँ तो सारी प्लानिंग आपको पता है, आपको सारी चीजें पता है, सारी कैलकुलेशंस आपको पता है. हमें समझना होगा गुड़गांव इज एन एस्पिरेशनल सिटी. लुक एट द पे स्केल, किस तरह के से लोगों की सैलरीज बढ़ी हैं लास्ट 5 ईयर्स में. एंड बिलीव मी, मैं डेटा बता रहा हूँ, लास्ट 2-3 ईयर्स वॉज द बेस्ट ईयर फॉर ऑफिस स्पेस लीजिंग. आप समझिए, दुनिया जिस तरह से इंडिया को देख रही है, एक स्टेबल गवर्नमेंट, उनकी पॉलिसीज, उनके प्रोसेसेस, जिस तरह का इंफ्रा डेवलपमेंट हो रहा है, और डेवलपमेंट केवल पेपर पे नहीं, उनका एग्जीक्यूशन देखो ऑन ग्राउंड. लुक एट ओनली गुड़गांव और ओनली NCR. RRTS किस तरह से चल रही है, किस तरह से उसका डेवलपमेंट हो रहा है. टनल हमारे सामने है, अभी 3rd टनल वसंत कुंज तक उसका काम चालू होने वाला है. लुक एट द पेरिफरी, जहाँ पे सारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं जो आपको एंटायर NCR को ना स्ट्रेच कर रहे हैं. तो आप समझिए, क्योंकि गवर्नमेंट को पता अब मैं गुड़गांव की बाउंड्रीज नहीं बढ़ा सकता,
अगर मुझे वर्टिकल डेवलपमेंट करना है तो वी हैव टू स्पेंड ऑन इंफ्रा। Sure. जिस तरह की रोड्स वाइडनिंग का काम चल रहा है, मेट्रो का काम चल रहा है, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अभी अभी 3 दिन पहले का इनिशिएटिव गवर्नमेंट का ही है कि उन्होंने 10 साल पुरानी कार और 15 साल पुरानी कारों को जिस तरह से बैन किया है, डीजल एंड पेट्रोल को, कहीं ना कहीं उनको पता है कि पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ रही है, लोगों के लिए आज भी दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, नॉर्थ इंडिया में स्पेसिफिकली बहुत बहुत पसंदीदा शहर हैं और वो यहाँ आना चाहते हैं। अगर वो यहाँ आ रहे हैं तो उनको इंफ्रा दिया जाए। और हम जो इस सिटी को प्रमोट करते हैं ना, हमें कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा ये हाउस ऑफ कार्ड करके कुछ भी चीज़ नहीं होती है। इट्स जस्ट अ नेगेटिव स्टेटमेंट जो कि वायरल होने के लिए कहा गया है। उन्होंने एक चीज और कहा जो मैं पेपर में देख रहा था कि रियल एस्टेट में कंटेंट क्रिएटर, रियल एस्टेट में ब्रोकर और रियल एस्टेट डेवलपर, ये एक ग्लैमर वर्ल्ड है, रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। इज इट ट्रू सर? एब्सोल्युटली अनट्रू। रियलिटी एग्जिस्ट करती है डिलीवरी के अंदर। रियल एस्टेट हम लोगों ने, डेवलपर्स ने मिलके एनसीआर में जितनी डिलीवरीज पिछले 4 साल में दी हैं अनप्रेसिडेंटेड हैं, और जितनी अभी चल रही हैं, यू सी वी हैव टू बी, आई थिंक हैट्स ऑफ टू द गवर्नमेंट फॉर ब्रिंगिंग इन लेजिस्लेशंस लाइक रेरा। आज की डेट में बाय एंड लार्ज वही डेवलपर हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करेंगे, बिकॉज यू सी विद काइंड ऑफ लेजिस्लेशंस दैट हैव कम इन today, developer today also is more responsible, more careful, more disciplined about fund deployment। तो वही रीज़न है कि डिलीवरीज अच्छी हो रही हैं और उनको पता है कि आज अपने ब्रांड को स्ट्रेंथन करने के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट टाइम पे, इनफैक्ट एक्सीडिंग द कमिटमेंट, बहुत ज़रूरी है। और ये बाय एंड लार्ज अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि एनआरआईज का कितना बड़ा फेथ वापस आया, जो आज से 10 साल पहले पूरी तरह वैनिश हो चुकी। वेरी ट्रू। Today, NRIs are back with a bang. The reason for that is they are looking at India with a different view, and they are looking at real estate developers in India with a different view. That has happened due to a lot of initiatives by the government, including RERA, including the way legislations, courts, all of them have moved, and developers have become very prudent. They have also understood very clearly that, you know, the best way forward is to take everyone along, deliver your products on time, do a good job with delivery, and government has pitched in with excellent infrastructure. तो अगर आप actually देखते हो, this is a golden time for Indian real estate as a whole, but especially I feel Delhi NCR and within Delhi NCR Gurgaon, because Gurgaon जितनी आप कह सकते हैं salary scales, earning potential, infrastructure और एक जो ecosystem है यहाँ पे lifestyle का और एक high end living का और high end earning का, वो दिल्ली एनसीआर में और कहीं पे भी नहीं है। इनफैक्ट एक मिनी एक्सोडस भी हो रहा है दिल्ली के अंदर से भी टू कम इनटू गुड़गांव, एंड बाकी नॉर्थ इंडिया के लिए तो बहुत बड़ा एस्पिरेशनल शहर है गुड़गांव। सो ये सब चीज़ें पहले नहीं थी, आज से 4 साल पहले इतना प्रोनाउंस्ड नहीं था जितना आज हो चुका है। और उसका कारण है कि पहले लोग गुड़गांव को एक अलग नज़रिए से देखते थे कि 4 दीवारी के अंदर आपको मिल रहा है, बाहर नहीं मिल रहा। आज वो बाहर वाला जो है हैज़ एक्सीडेड एनी अदर पार्ट ऑफ एनसीआर and people are seeing it day by day. So मेरे दिमाग में आप सबसे बात कर एक क्वेश्चन आया, अगर एनआरआई इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में एंड स्पेशली गुड़गांव में, अगर एक कस्टमर रिपीट होकर दोबारा आ रहा है, अगर एक क्लाइंट 3 बेडरूम से 4 बेडरूम में मूव कर रहा है, या फिर एक क्लाइंट ब्रांडेड रेजिडेंस में मूव कर रहा है, अगर एक क्लाइंट इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले रहा है, looking at the payment plans, coming and visiting and seeing the right, अगर हमारे गुड़गांव में अर्बनाइजेशन हो रही है, अगर हमारे गुड़गांव में ऑफिस कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अगर हमारे गुड़गांव में सैलरीज पिछले 3 साल से बहुत बढ़ रही हैं, तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, कोई भी इन्फ्लुएंसर आकर अगर ये बोल दे कि गुड़गांव एक बबल है या गुड़गांव एक हाउस ऑफ कार्ड्स है, तो अंदर से फीलिंग क्या आती है? कंप्लीट रिजेंटमेंट, और रिजेंटमेंट बेस्ड अपॉन लॉजिक एंड हार्ड फैक्ट्स। तो जितनी भी बातें अभी तक बोली जा रही हैं ना, जो बिल्कुल सही तरीके से परीक्षित जी ने भी बोली, प्रियम ने भी बोली, करुण, अंदर से कैसी फीलिंग आती है करुण? बिल्कुल बेसलेस। It doesn't matter to me. Tomorrow I say Bombay is not good. How does it matter? Your sales talk ना, sir. या एब्सोल्युटली। कल को मैं कुछ भी बोल दूँ आप मान लोगे? सर आपके पुराने प्रोडक्ट में कोई इन्वेंट्री बची है जो अभी 6 महीने पहले लॉन्च हुआ था? हार्डली। इनफैक्ट आई विल से वी ट्रेडर है जो ट्रेड करना चाहता, तो आप ये देखिए, जनरली जेन्युइनली गुड़गांव के अंदर आज जो है
जो अगर कोई इन्वेस्टर भी है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए है, उसको पता है कि मेरा पैसा जितना यहाँ पे ग्रो करेगा और दुनिया में कहीं नहीं ग्रो कर सकता, इंडिया तो छोड़ ही दीजिए आप, जितनी रिटर्न गुड़गांव दे रहा है मुझे नहीं लगता। पर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको फील कैसे आती है जब ये सारी चीजें मैंने जो बोली, एक अंदर से फील कैसे आती है कि कोई भी आकर कुछ बोल दे? So, Vinith, I'll tell you, the first person who asked me a question was one of my very dear clients based in Dubai. तो क्या क्लाइंट्स इन्फ्लुएंस होते हैं? मेरा नेक्स्ट मैं यही कहना चाह रहा हूँ। So he asked me for my opinion, and I was very, very vocal in my opinion. Because I know that the client will value my opinion. Definitely he'll value others' opinion also. But understand the intention. If we point a finger at someone or something, 4 fingers also point back at us. So understand the malified intention in saying what he's saying. And understand the kind of viciousness or poison they are creating in the minds of hardworking NRIs who have reinvested their faith in the Gurgaon market, seeing the standardization. परीक्षित, एक क्लाइंट जो हमारे साथ एसोसिएटेड है, उसके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड में ये चीज कहीं ना कहीं नॉक नॉक जरूर करती है, तभी वो आपसे पूछ रहा है। Malified intention. The intent is important. He's not coming from a So positive. what is the message you want to give to all those clients who have got 10 to 20% influenced, or they've holded back their decisions? I want to say, don't take anything on the face value. Take it with a pinch of salt. Has he sold any Gurgaon property yet? I mean, you know him. That's what I told my client as well. And do your due diligence. Understand where the creator is coming from. Please look up their LinkedIn profile. Please see their employment details. Where are they working? What is their background? Are they even actually registered under Haryana RERA? Have they done any transactions in Gurgaon? It's very easy to comment. I can comment here about anything in Mumbai, Chennai, Pune. Why are you not commenting about Pune? I'd just like to say Gurgaon is doing exceedingly well, as are other places all over India. You still don't want to comment about Pune? I would like to reserve my comments, but I'm, actually very, very positive about entire Maharashtra. That's what will differentiate me from someone who's acting with a negative mind. So you believe in healthy competition? Healthy competition, definitely. We are one country. We cannot start infighting among our states just because one state is doing exceedingly well. You cannot pass a negative comment कि आपका everything is decimated, कि it's a house of cards. Is that a statement to say? It shows your insecurity. It shows your upbringing. It shows the kind of background you come from. It shows the kind of people who are provoking you. Is it something healthy to say? Nobody says that. Is it something healthy to say? No, it would have been healthy to say had it been based on facts. It's completely baseless, something which is not even, thought properly before speaking. So I think one should be careful and be very, very sensible before, make such a big statement. And today, the kind of impact social media has. But people are very, very intelligent. They research. They are far more, all of us have seen consumers evolve in the Indian real estate market. They are much sharper than what we think. So I don't think anyone is taken at face value at all. And before you see anyone making excessive content which is inflammatory, which is negative, which is being provoked by certain sentiments, please do a Google search, do a LinkedIn search. Who is that person? Do not get influenced by mindless, baseless videos which are provoked by negative industries or negative people who are not happy seeing the progress. मतलब ये तो वही बात हो गई, मतलब नहीं, आप अपने घर में बहुत अच्छा कर रहे हो, सारी चीज़ें वेल मैनेज चल रही हो, पड़ोसी खटखटा के बोले यार अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम्हें क्या पता कि क्या अच्छा है और क्या नहीं अच्छा है। देखिए सर, एक 100 मीटर जब रेस भी होती है ना, एक स्प्रिंट भी कोई मारता है तो फुल स्पीड में भागने के बाद उसको रुकना पड़ता है ताकि वापस से आके मारे। तो कंसोलिडेशन और करेक्शन एक नेचर है किसी भी इंडस्ट्री का, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, तो ज़रूरत पड़ती है उसकी, क्योंकि जैसे ही आप स्टॉक मार्केट भी देखो, जाता है देन नीचे आता है देन ऊपर जाता है, अगर ये ऊपर ही जाने लगे और या नीचे ही जाने लगे तो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो केवल एक स्टेटमेंट देना, मैं आप क्लाइंट की बात कर रहे थे, मैं 4 दिन पहले ही का अपना किस्सा बता रहा हूँ। ऑलमोस्ट डन कस्टमर, गया 3 बार विजिट हो गई, या फैमिली करी, इससे अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, द्वारका एक्सपी पे कुछ चीज़ उसको दिखा के आया, बहुत खुश। शाम को अचानक से फ़ोन आया कि प्रियम यार एक वीडियो देखा था, उसमें कुछ वो बबल की बात कर रहे थे। मैंने कहा सर वीडियो आप देखे थे, कौन था वीडियो में, क्या था? नहीं वो तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, वो वीडियो आ गया। तो आप समझो कि स्टेटमेंट का इम्पैक्ट कितना है। उसे नहीं पता कि किसने कहा, कब कहा, उसके पीछे का सिनेरियो क्यों है, क्या है, बट उसने ये था कि गुड़गांव में बबल है। अब बबल के
चक्कर में कहीं ना कहीं वो टैट बढ़ जाता है, कहीं ना कहीं चीज़ें गलत हो जाती हैं। और समझना पड़ेगा कि एक इंडस्ट्री इसके साथ है, लोग इसके साथ हैं। तो मैं तो बहुत पर्सनली लेता हूँ इसको, तो मुझे पर्सनली बहुत नाराज़गी है। आप उसको सही तरह से फ्रेम करो। मैं यहाँ बैठकर कुछ चीज़ें कमेंट करूँ, अगर वो बेसलेस है ना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, विशाल जी ने एक 2-3 चीजें ऐसी कही जिसमें मुझे समझ नहीं आया मैं कैसे रिएक्ट करूं, पर उन्होंने ये बोला, एक तो डेवलपर लूट रहे हैं, ठीक है, एक उन्होंने बोला कि हमारे को अंडर कंस्ट्रक्शन में किसी क्लाइंट को पैसे नहीं लगाने चाहिए, ठीक है। एक उन्होंने ये भी बोल दिया कि जो डेवलपर है वो जो सैंपल बनाते हैं वो दिखता कुछ और है जब सैंपल बनाते हैं, पहले तो बनाते नहीं, अगर बनाते हैं तो जो दिखाते हैं वो एंड में वैसा नहीं होता। सो लेट मी आंसर बोथ द क्वेश्चंस। सबसे पहली बात तो सैंपल फ्लैट जिस तरीके से बनाए जाते हैं दोज आर एज पर दी अप्रूव्ड लेआउट्स ओनली, राइट। और सेकेंडली जो उसमें स्पेसिफिकेशंस यूज होती हैं दोज आर एग्जैक्टली व्हाट इज कमिटेड। हाँ, उसके अंदर कुछ मूवेबल फर्नीचर होता है जिसके लिए हम क्लियरली डिस्प्ले करते हैं दैट दिस इज नॉट पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस एट ऑल, एंड वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबली एक्सप्लेन्ड ऑल्सो एंड कमिटेड ऑल्सो। और उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसमें बाकायदा सारी चीज़ें होती हैं। सेकेंड पार्ट इज, सो आई फील दैट इज अ कम्प्लीटली इररिस्पॉन्सिबल थिंग टू से इफ दैट्स बिन सेड। कॉस्ट की जहाँ तक बात है तो डेवलपर लूटते हैं, कम्प्लीटली अगेन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आप आज की डेट में एक बड़ी जेन्युइन फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, हमने 16,500 रुपये प्लस एवरेज PLC 300-400 रुपये के आसपास सब 17,000 रुपीज़ स्क्वायर फुट के अंदर अपने तकरीबन 600 अपार्टमेंट्स की सेल करी अभी रिसेंटली, वर्टी ग्रीन्स 102। वी वर एबल टू मैनेज दैट प्राइस ओनली बिकॉज वी हैव एन ओल्ड लैंड होल्डिंग, और बहुत पुराने टाइम की वो लैंड है। अदर देन दैट, अगर आप आज एक नया लैंड पार्सल खरीदने निकल जाएं द्वारका एक्सप्रेसवे पे, और आज एक एवरेज कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर द काइंड ऑफ स्पेसिफिकेशंस, लग्जूरियस एमिनिटीज दैट आर बीइंग गिवन, आप 7,500 से लेकर 9,000 रुपये पर स्क्वायर फुट से नीचे ला ही नहीं सकते। करेक्ट। Third part is all your admin costs have shot up like anything. Your labor costs have shot up. Your time period for construction in Delhi NCR is very huge, क्योंकि आपका यहाँ पे NGT बैन जो पोल्यूशन की वजह से लगता है वो आपके 2 से 2.25 महीने खा जाता है हर साल। उसके बाद लेबर, you have to account for the fact that due to heavy rain sometimes plus festival season, including Chhat, including a lot of the other festivals which are there, you have to account for it more than a month for that. तो आपको actually construction time period मिलता है 8 से 8.5 महीने। Despite that, because of fresher construction technology which is far more efficient, like My1, all of these have contributed to the quality of construction and the speed of construction improving. Despite all of that, responsible and good developers are able to finish even high rises of 40 stories and deliver that also within 5 years, which is a huge achievement. तो अगर आप एक्चुअली बोलें तो जिस लेवल की कॉस्ट्स आज डेवलपर्स फेस कर रहे हैं, तो जो प्राइसेस आज की डेट में मार्केट में है वो बहुत ही जस्टिफाइड और रीजनेबल है, वो कहीं पे भी ऐसा नहीं है। और देन कंस्ट्रक्शन इज हैपनिंग राउंड द क्लॉक नाउ, सो वो डिलेज वाली बात भी नहीं रही। सो आई थिंक यू शुड बी फेयर व्हेन यू मेक अ स्टेटमेंट, और पहले खुद आप एनालिसिस कर लीजिए रादर देन मेकिंग सच लूज स्टेटमेंट्स के डेवलपर लूट रहे हैं। तो वो पहले एक बार आदमी को खुद देखना चाहिए कि वो बोला क्या जा रहा है। Completely incorrect. So I was listening to his podcast, and you very rightly said that he asked the people not to buy into under construction or possession पे आप लें। मैं आपको रियल लाइफ ग्राउंड सिनेरियो बता रही हूँ। अगर आज रीसेल का बायर है, चाहे 10 करोड़ का हो, 15 करोड़ का, फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट दैट सॉर्ट ऑफ अ क्लाइंटल। क्या है उनके पास? हाउ मेनी इन्वेंट्रीज डू यू हैव इन 10 to 15 crores, right? And if I have that sort of money, I also want that sort of a new structure, new everything, new club. And because of RERA and builders like DLF Central Park, you have the whole history to see. आप उनके लास्ट, और ये उन्हीं के ही वर्ड्स है जो मैं आपको बता रही हूँ, कि आप उनके लास्ट 5 प्रोडक्ट्स उठा के देखिए, आपके सामने प्रूफ है that they are doing amazing. और उन्होंने ही बोला है द वे DLF हैज टेकन केयर ऑफ इट्स प्रोजेक्ट्स, चाहे वो प्रिंसटन, उन्होंने प्रिंसटन की बात भी करी, चाहे वो प्रिंसटन क्यों ना हो, इट इज डन सो वेल। सो प्लीज डू योर ड्यू डिलिजेंस,
If the builder is nice, get into under construction. 2 reasons है, आपको upfront payment नहीं करनी. Your money is going in all white. आप उसको 5 साल के ड्यूरेशन में अगर देंगे यार, तो आप उसको कहीं और इन्वेस्ट करके यू कैन यूटिलाइज दैट मनी. प्लस लोन पावर भी है. प्लस लोन पावर है, आपके बैंक्स इन्वॉल्व है. ऐसा थोड़ी ना है कि भैया मतलब कुछ भी है. यू हैव HDFCs. धीरे धीरे हो जाते हैं. आप करोगे, आप अर्न कर रहे हो. लेट्स से मुझे कहीं से आने हैं, मेरी कोई पुरानी प्रॉपर्टी है जो बिक. प्लस जो 5 साल पहले अगर लैंड प्राइसेस बढ़ रहे हैं और लैंड आपको एग्जिस्टिंग, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 5 साल के बाद जो एक्स प्राइस पे लिया है वो वाई ना हो. आई मीन अभी तक तो गुड़गांव के रियल एस्टेट हिस्ट्री में एक्स का वाई हमेशा ही हुआ है. एक्स माइनस भी कभी नहीं हुआ ऑन पोजेशन. Have you met one person in Gurgaon who has regretted buying property here? Show me one and please make me meet them. I have wonderful clients who stay in Crest. द प्रॉब्लम इज दिस कि लोगों ने बहुत पैसा कमा लिया. अब जब बहुत पैसा कमा लिया तो ऐसी सिचुएशन आती है कि थोड़ा सा पैनिक कर दो जिसमें वो और पैसा यहाँ पर ना डालें. Right. You were saying that I have a This kind of behavior from such influencers comes from a childhood insecurity, because people have been told that you have to behave in a certain manner to attract attention. It is purely attention seeking behavior at the cost of saying anything which defies all logic, defies all the groundwork done on the ground. I'll tell you why. 5 साल के बच्चे को सिखाया जाता है, अगर आपको कोई बच्चा मार दे आप क्या करोगे? आप उसको तो नहीं मार दोगे, तो आप में और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा? So our intent as stakeholders in the real estate industry is to refute the arguments in a very structured, process-driven manner based on data and evidence, because all of us are working on the actual ground level. I don't think such influencers have even worked in Delhi or Gurgaon markets ever. Firstly. Secondly, 5 साल के बच्चे को सिखाया जाता है there is a path of the good, जो सच्चाई और ईमानदारी की पथ होता है. The second is the path of the pleasant. The path of the pleasant is purely for attention-seeking behavior. You can say all kinds of things to come in the limelight. You can break all your friendships just to attract attention. You can be the most popular person in class by doing all the wrong things. The path of the good, सच्चाई और ईमानदारी, it takes time. Truthfulness, honesty, integrity, it takes time. If you are doing all your homework, doing all your books, doing all the necessary things to be a right student, you are participating in extracurricular activities, doing sports, and you are maintaining relationships, maintaining friendships. The entire life is a choice between these two paths, the path of the good and the path of the pleasant. लोगों को 80 साल बीत जाते, 80-90 साल की उम्र बीत जाती है, उनको समझ नहीं आता कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है. दिस इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए. 5 साल का बच्चा समझ जाएगा, हो सकता है 80 साल का बुजुर्ग भी ना समझे. कहीं ना कहीं ये सारी कन्वर्सेशन सुनने के बाद, क्योंकि मैंने बहुत बिट्स एंड पीसेस में चीज़ों को देखा है, बट ये स्टेटमेंट कि बिल्डर लूट रहा है या सैंपल फ्लैट गलत बन रहे हैं, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो टाइम ट्रेवल तो नहीं करके आ रहे कि 2013 में सो रहे थे, 14 में उठ के बोला कि यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो होता था 10 साल 12 साल पहले विदाउट रेरा चीज़ें हो रही थी कि सैंपल फ्लैट सर गलत तरह से दिखाते थे. अंडर कंस्ट्रक्शन में लोग कहते थे मत लेना भाई, बनेगा ही नहीं. मेरी बात को समझना, उसके पॉइंट्स गलत नहीं है, बट वो थोड़ा 10 साल लेट है. 2012, 13, 14 में अगर ये बात कर रहा होता ना कि भाई बनेगा नहीं, अंडर कंस्ट्रक्शन में मत लो, हमें सैंपल फ्लैट पे ट्रस्ट मत करना, बड़ा दिखाया जाता है, छोटा बनता है, बिल्डर लूट रहा है, बेसलेस प्राइसेस हैं. सॉरी, 2025 में बैठे हुए हैं. लास्ट 5 साल 6 साल 7 साल में जो भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं वो बहुत अच्छे से डिलीवरी हुई है, एंड विद इन टाइम फ्रेम, जैसा सर ने बताया कि एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क टेक्नोलॉजी से अभी आप देखो ना, इमारत डिजियोम्स टाइमली बन के आया है. अभी आर्बर को कितना टाइम हुआ है, आपके सामने देखो किस तरह से स्ट्रक्चर बढ़ रहा है. गोल्फ स्टेट में अब ऑल्टीट्यूड का आप देखो किस तरह से कंस्ट्रक्शन हो रहा है. ट्रम्प टावर हमारे सामने है. तो हमें समझना होगा कि चीज़ें समय लेती हैं, और सर ने बहुत अच्छे से चीज़ों को क्लियरली बताया कि कैसे 12 महीने में ना हमें केवल 7 महीने मिल रहे हैं. जैसे हमारी ना 100 रुपये की इनकम में 30 रुपये गवर्नमेंट ले आती है, हमें 70 रुपये भी काम करना है, उसी पे ही अपने 12 महीने चलाने हैं. तो उसी तरीके से है कि हमें 12 महीने में केवल 7 महीने मिलते हैं काम करने के. तो इसलिए टाइम लगेगा, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग एन आइलैंड. वी आर नॉट क्रिएटिंग 1-1 एकड़ 2-2 एकड़ के प्रोडक्ट जहाँ पे चीज़ें वर्टिकल तो हैं बट हॉरिजेंटली कुछ भी नहीं है आपके पास. यहाँ पे क्लब भी बनाना है, लोगों को स्काई वॉक भी चाहिए, लोगों को गोल्फ भी खेलना है, लोगों को क्रिकेट स्पोर्ट्स अरीना भी चाहिए. तो भाई टाइम लगेगा. और अपग्रेड तो लाइफस्टाइल में, आई थिंक इफ यू डूइंग वेल इन लाइफ दैट शुड बी द वे. मतलब आज जो अगर पुराने घर हैं, अव्वल तो रीसेल में मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो रीसेल में इन्वेंट्री से नहीं मिलती हैं. Correct. अगर मिलती भी हैं तो उसमें अपफ्रंट 100% डाउन पेमेंट है आज.
तो अंडर कंस्ट्रक्शन में अगर घर लेना है और मुझे नया जैसे कोई लग्जरी लेना है, ठीक है, इनफैक्ट ब्रांडेड रेसिडेंसेस न्यू वे ऑफ लॉन्चेस इन नेक्स्ट 1 or 2 months, टॉक ऑफ द टाउन है। तो वो आज मैं एक जगह रहता हूँ तो मैं अपग्रेड कर ब्रांडेड में मूव करना चाहूंगा, आई थिंक बाय वर्च्यू ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन ओनली, Yeah. एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट प्राइस विल इंक्रीज। तो उसको समझो ना, अंडरस्टैंड द इंटेंट, अंडरस्टैंड द मैलिफाइड इंटेंट. तो कुछ इन्फ्लुएंसर्स ही इसको पोस्ट को और अपग्रेड करते हैं। व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड अदर इन्फ्लुएंसर्स आल्सो प्रमोटिंग दिस? So that is their prerogative, which lobby they want to support. My lobby is to support integrity, truthfulness, honesty, devotion, and dedication. वो आपका पाथ ऑफ वो वाला फंडा है। The thing is, understand the malified intention of the lobbies which are promoting such endorsements to go out without any scientific evidence, without any data, without any groundwork analysis. Because they are stuck with unsold inventory of supply. There is unsold inventory in the resale markets, which they are not able to sell because the entire sentiment is being diverted to Gurgaon. They are jealous. So what will Gurgaon, I want you to think about this for 30 seconds. The projects which are being sold or have been sold, let's say in 2030, what will Gurgaon look like? Like BPTP ready for possession, then we have interim mention, altitude, DLF Arbor, DLF Privana, another 5 years. Can you imagine a world where all these projects are delivered and the kind of lifestyle the generation will have, the kind of amenities? Will it be like Dubai in 2030, our present Gurgaon? Just think, have you ever thought the kind of lifestyle? Yeah, so I think Gurgaon will be a true international city, which we will always be proud of. I think 2030 will take it to a completely different level. Completely different level. I think the kind of lifestyle, the kind of products that are going to be delivered during these 5 years, more cosmopolitan, more international, maybe even more expats. So I think Gurgaon is destined for a lot of good times to come. And I think it's going to be a combination of a lot of things. It's on the right path and it's got good speed with it. I can imagine 2030 if I'm living in Delhi, let's say GK2. You living in GK2, right? And if near to airport, near to AeroCity, where a world mark, I think mall ready ho raha hai, 7 lakh square feet, another 6 months maximum. So Dwarka Expressway में आप रहना नहीं चाहोगे? I will say that there's a very famous quotation by Muhammad Ali. Muhammad Ali used to be known as Cassius Clay. He was one of the first Afro-American people who won an Olympic gold medal for the US. And his training was like no other person's training. He is known as the champion of champions. He has quoted, impossible is a big word which is created by small people with a small vision, because they don't realize the power they have to change their circumstances and their environment. They find it simple to criticize the people who are actually working towards changing that environment. Impossible is not logic. Impossible is not a fact. Impossible is merely an opinion which can change. Impossible is a dare. Impossible is an opportunity. Impossible is nothing. Impossible is nothing. That is what Muhammad Ali has said. It is quoted in many motivational corporate series. The sky is the limit. आप कल्पना करिए, but see the groundwork that is happening. Imagine what can happen seeing the progressive government in place, seeing the actual groundwork happening in the infrastructure side, see the actual groundwork the developers, the channel partners, the real estate consultants, the clients themselves are putting into visiting all these properties. And take such advice coming from negative people who are being provoked by certain lobbies, take it with a pinch of salt. Do your due diligence. Don't believe everything you are seeing on Instagram. Stop scrolling and look up. If you are, ignorance is not an excuse. We are living in a digital age. I'm sorry. We cannot say हमें पता नहीं था, हमने देखा नहीं, हमने सुन लिया तो मान लिया. कोई आपको बोले कुएं में कूद जाओगे क्या? ये तो 5 साल के बच्चे को सिखाते हैं ना, उसने बोल दिया तुमने मान लिया. Do your thorough due diligence. Don't believe everything you're seeing on the internet. It can be influenced by certain lobbies. The path of the good, the path of the pleasant. Do you want to have an attention-seeking behavior at the cost of saying wrong things, just to poison hardworking NRIs, hardworking people, business owners
who work day in and day out, and this is what they get to hear about a sector which is working so hard, about developers who are putting their heart and soul into their projects. I don't think there is any ground of even talking about such a person who is trying to poison the mindsets of hardworking individuals. Supreme, मैंने पहले तो मैं ना वो 2031 वाला अभी भी वो दिमाग से नहीं निकला मैंने, क्योंकि मुझे याद है मैं मतलब 15 इयर्स बैक सर, व्हेन आई ज्वाइन माय फर्स्ट डे था मेरा, सबसे पहले मुझे एक A4 शीट पे एक मैप पकड़ाया गया, ये क्या है, दिस इज 2031 मास्टर प्लान, और उससे में बताया गया कि ये गुड़गांव नहीं है, ये मिलेनियम सिटी है। तो मेरा आंसर यही है कि 2030 में ना फाइनली ये मिलेनियम सिटी कहलाएगी, जहाँ पे सारी चीज़ें होंगी जो हम फॉर्च्यून 500 की बात करते थे। हम 2031 के मास्टर प्लान ऑलमोस्ट अभी नाउ द गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद द न्यू मास्टर प्लान ऑफ 2040, 16 सेक्टर्स बढ़ने वाले हैं गुड़गांव के अंदर ऑन दी अदर साइड ऑफ अपर द्वारका एक्सप्रेसवे। तो ये जो 2031 की प्लानिंग है, अगर गवर्नमेंट अपनी पूरी करती और डेवलपर हमें पता है जिस तरह से काम कर रहे हैं, ट्रस्ट मी उस दिन ये रियल में मिलेनियम सिटी कहलाएगी, जिसपे हमें और प्राउड होगा और जिसको इंटरनेशनली लोग जानेंगे। जैसे सर ने कहा कि ये इंटरनेशनल सिटी बन जाएगी, एक्चुअली ये होने वाला है। चलो बहुत बढ़िया। लेट्स हम बिल्कुल आखिरी में हैं। सो 2 प्रोजेक्ट्स यू विल इन्वेस्ट योरसेल्फ इन गुड़गांव, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। फर्स्ट तो आई लव टू इन्वेस्ट इन मैरियट, दी वेस्टर्न रेसिडेंसेस, वाइटलैंड का प्रोडक्ट है, जिस तरह का ब्रांडेड रेसिडेंसेस है ये, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम जहां हम ब्रांडेड रेसिडेंसेस की बात कर रहे हैं, हम फ्रेंचाइजी मॉडल की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पे। एंड सेकंड प्रोडक्ट, Time is less, so I'll just I really like that product. How about you? Well, 2 projects, definitely DLF Dahlias and DLF Camellias. My vote is with DLF. Absolutely. Elan, Emperor, and Central Park, Bella Vista. Wonderful. PPTP, of course. BPTP, of course, and Being launched by yeah, so BPTP Gaia Residences, which is currently on in Sector 102, and our upcoming launch in Sector 66, which is again going to be a mind-blowing project. So I think both. Wonderful. I'll say all projects in Gurgaon by good developers is a good investment. Don't trust your broker. Kyun? If I'm a buyer, I can go to the builder, buy it. Why are you going to a broker in the first place? What are you getting? I'll tell you exactly how the conversation of most of the buyers go. They already know the project. उनका सिर्फ एक क्वेश्चन होता है, मुझे डिस्काउंट कितना मिलेगा। मैम मेरे को तो 4.5% मिल रहा है उनसे, तो आप कितना देंगे? तो उनको क्वालिटी ऑफ सर्विस में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, एंड दैट रियली सरप्राइजेज मी, बिकॉज व्हेन यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी देयर कैन बी मेनी थिंग्स दैट कैन हैपन. You need somebody who is well versed with the product, with the micro market that you're dealing in. And let's say as a consultant, मुझे लगता है कि जो ये आपकी choice है वो better हो सकती है, हम एक better product ले सकते हैं. You have to listen to me and give credit where credit is due. You know, this is what I feel. Don't trust your broker. So, Vineet, I'll say, how can you decimate? How can you bring to a naught the effort, the experience, the credibility of a person who has put in their heart and soul, their day and night for the past 20 years to scan the spectrum of properties available across developers, across the entire market? How can you decimate their projects? How can you decimate their entire effort of the past 20 years by saying don't trust your broker? What could You mean to say कि trust influencer, don't trust your broker. I will just like to add to that. 5 साल के बच्चों को एक कविता सुनाते हैं स्कूल में. Take it with a pinch of salt. जो आदमी मेहनत कर रहा है सच्चाई और ईमानदारी से पिछले 20 साल से, उसने जूते के साए बाल सफेद हुए हैं उसके प्रॉपर्टी बेचते बेचते. Correct. ये तो है. You're asking a so-called person comes out of the blue, don't trust your broker. उनके लिए करारा जवाब है. सुनिए, एक कविता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखी है. असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो. क्या कमी रह गई थी, देखो और सुधार करो. जब तक ना सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम. संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम. दिस इज द मैसेज फॉर ऑल द रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स. संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम. कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. अगेन यार विनीत, मतलब दिल पे लग गई बात. बीइंग एन एम्बेसडर ऑफ दिस इंडस्ट्री, आप समझो कस्टमर केवल वो नहीं है जो इस शहर में रह रहा था, अब उसने सोचा कि यार चलो घर ले लेते हैं. कस्टमर वो भी है जो माइग्रेट करके कहीं से आ रहा है. कस्टमर वो भी है जो
बाहर बैठा हुआ है जिसको पास अभी आने का मौका नहीं है, उसके लिए जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो जो उसके लिए आंखें हैं ना, वो उसका ब्रोकर है। आप समझो, उसको हर वो चीज़ नहीं पता हो सकती जो एक डेवलपर के लिए डेवलपर के साथ डीलिंग करने वक्त पता होनी चाहिए। आप समझिए, मुझे घर खरीदना है बट आई डोंट नो द प्रोसेस। उस प्रोसेस को सिखाने वाला, उस प्रोसेस पे साथ में चलने वाला जो है ना, वो उसका ब्रोकर है। आप उसको डिस्करेज नहीं कर सकते, आप उसको हटा नहीं सकते हो। अगर आप उसको ज़ीरो कर दोगे तो किसी तरह की डीलिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो आप समझिए, हमें हर चीज़ में ब्रोकर की ज़रूरत है। इट्स नॉट ओनली अबाउट रियल एस्टेट, इट्स अबाउट एवरीथिंग। Well said. आप सोचिए ना, अर्जुन किस तरह बाण चलाता अगर उसको कृष्ण जैसा सारथी ना मिला। सारथी चाहिए आपको जीवन में, और सारथी मानिए या ना मानिए, वो आपका रियल एस्टेट ब्रोकर ही है। No, no, very true. And broker is the channel partner, is the link between a customer and a developer. कस्टमर के लिए बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर होता है और गाइडेंस होती है, और वो उसको कई सारे विकल्प, कई सारे चॉइसेस, कई सारे ऑप्शंस दिखाता है, गुड बैड अगली, और सबके पॉजिटिव्स नेगेटिव सब कुछ दिखाता है। और डेवलपर के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लिंक है, और डेवलपर की क्रेडिबिलिटी को और इन्हेंस करता है एक चैनल पार्टनर। सो आई थिंक ही इज द ब्रिज बिटवीन बोथ द साइड्स। Very, very important link, and very has a great responsibility. I think most of the channel partners in our city, Gurgaon, are doing a great job, and I think may their tribe grow. सर, घर खरीदना हर एक के लिए, स्पेशली पहला घर, और जबकि हम मेरा ये मानना है कि बहुत सारे एंड यूजर्स आ रहे हैं और वो लेआउट्स, वास्तु, सब कुछ देखते हैं, तो एक इमोशनल अटैचमेंट होना, मेरे ख्याल से वो इट्स अ प्रोसेस। आप उसमें इमोशन को अलग नहीं हटा सकते। मैं इसलिए भी ये चीज़ कह रहा हूँ कि विशाल जी ने ये भी बोल दिया कि भाई इमोशनल नहीं होना चाहिए घर खरीदते वक्त। ये पॉसिबल ही नहीं है। ये घर खरीदना, हम जिस कल्चर से आते हैं, हम जिस कंट्री में हैं, वहाँ पे हमें सिखाया गया, हमारी अपब्रिंगिंग में है कि हमारी लाइफ का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारा घर है। तो उसमें कैसे नहीं इमोशनल हम डालें। आप समझो, मैंने देखा है ये, मतलब कस्टमर की आंखों में, जब आप सैंपल फ्लैट में लेके जा रहे होते हो, जो घर की फीमेल होती है वो सीधे पहले किचन की तरफ जाना चाहती है, वो समझना चाहती है कि किस तरह से है, चीज़ें सेट हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। जो मेल होता है उसको ड्राइंग रूम ज़्यादा समझ में आता है कि ड्राइंग किड्स रूम के लिए बच्चे जा रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक इमोशन तो कनेक्ट है, और वो इमेजिन करने लगते हैं। उस जर्नी में हम उनके साथ रहते हैं, तो इसलिए वो इमोशनल भी है और ब्रोकर ज़रूरी भी है। So thank you all for coming here. It was really, really nice, and there's a lot of learning I take from here. Thank you. Do you think these negative videos are harming the sentiments of genuine buyers? Real estate is a long-term game, not a viral moment. Let's fix what's broken. Let's expose what's fake. But let's also protect what's real. The dreams, the jobs, the lives behind Gurgaon skyline. This isn't about defending the market. It's about redefining it. This was Chai with Chalani. Share this before you share a booking check.